Good morning, class. Today I am here with the exercise discussion, exercise 12.2 discussion from question number 3. In previous video, I have taught you about the question 1 and 2. Now I am discussing question number 3. So, question number 3 is two adjacent sides of parallelogram are in the ratio 5:7. The ratio of two adjacent sides are given. If the perimeter of the parallelogram is 72, you have to find all the sides. So, सबसे पहले क्या करेंगे, रफ फिगर बना लेंगे. This is the parallelogram A, B, C, D. In a parallelogram, you know opposite sides are parallel and equal. So adjacent side ये 5x, this is 7x. तो इसके बगल वाली भी क्या हो जाएगी 7x and इसके ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी 5x. So you will take the common ratio as x. Let common ratio as x, common ratio be x. ठीक है, ये आपको पता है. And in a parallelogram, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. You know, therefore, AB will be equal to DC. AB will be equal to DC will be equal to 7x and BC will be equal to AD, that is 5x. BC will be equal to AD, that is equal to 5x. ये आपको पता होना चाहिए. Perimeter is given as 72. You know perimeter means sum of all sides. Perimeter क्या होता है? Sum of all sides. So you will add all the sides. So therefore AB plus BC plus CD plus DA will be equal to 72. क्योंकि perimeter आपको given है. So add करते हैं. AB कितना है? AB आपका है, AB है 7. AB आपकी ये लेंथ है, ठीक है. तो 7x प्लस BC कितना है? BC इज 5x, ओके, प्लस CD. व्हाट इज CD? CD इज 7x एंड DA इज 5x, दैट इज इक्वल टू 72. तो सबको ऐड कर देंगे. 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 12 24. तो 24x विल बी इक्वल टू 72. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. नाउ यू विल गेट द साइड्स, दैट इज AB will be is equal to DC is equal to 7x. तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ओके. एंड BC, सो BC किसके इक्वल है? AD के, दैट विल बी इक्वल टू 5x. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो साइड्स आपकी क्या आ गई? 21 एंड 15. सो दो साइड 21 है अपोजिट एंड दो साइड आपकी 15 है. दिस इज द आंसर. Now moving towards question number 4. So students, I am here with the question number 4. Question number 4 is the measure of two adjacent angles of parallelogram are in the ratio 4:5 and you have to calculate all the angles of parallelogram. So I am drawing a rough figure here. Same question है जैसे पिछले वाले में साइड थी, यहाँ पर बस एंगल है और कोई चेंज नहीं है. So ABCD the parallelogram. एडजेसेंट एंगल्स 4:5 के रेशियो में. सो B आपका अगर 4x होगा तो C आपका 5x होगा. एंड यू नो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज 4x, सो दिस इज ऑल्सो 4x एंड C इज 5x, तो A इज ऑल्सो 5x. नाउ यू विल टेक, like in previous question we have taken, let the common ratio be x. So here also we will take let the common ratio be x. Let the common ratio be x. Okay. Let the common ratio be x. Then angles. Then angle B will be is equal to 4x. Will is equal to angle D. ठीक है. And angle C is equal to 5x. Will be is equal to angle A. Because opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. Opposite sides equal होती है तो opposite angles भी क्या होते हैं? Equal होते हैं. Now यू नो, देखिए दो प्रॉपर्टी ला सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री भी लगा सकते हैं एंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, वो भी लगा सकते हैं. सो आई विल अप्लाई द प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो यू नो दैट एडजेसेंट, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. Okay, so you can take any of the two pair of adjacent angles. So B plus C will be equal to 180 degree. Therefore angle B plus angle C will be equal to 180 degree.
अब b की वैल्यू कितनी है 4x एंड c की वैल्यू कितनी है 5x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री 4x प्लस 5x दैट इज 9x सो 9x इज इक्वल टू 180 सो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा ओके नाउ यू कैन फाइंड द एंगल्स एंगल b इज इक्वल टू एंगल d दैट इज इक्वल टू 4x सो एंगल b इज इक्वल टू एंगल d दैट इज इक्वल टू 4x तो 4 into 20 that is equal to 80 degree and angle C is equal to angle A. Angle C is equal to angle A will be equal to 5x that is equal to 5 into 20 that is 100 degree. Okay. Now I'm moving towards question number 5. You can see the answer. You can make the notes also. Now moving towards question number 5. So you can make the notes of this question. The angles will be 80 degree, 80 degree, 100 degree, 100 degree. Okay. Now I'm moving towards question number 5. All of you see question number 5. So students, I am here with the question number 5. Question number 5 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या quadrilateral ABCD parallelogram हो सकता है? Give reason in support of your answer. So I have made a quadrilateral ABCD. You have to tell whether it can be a parallelogram for the following given conditions. So एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री क्या ए प्लस सी 180 हो सकता है ए प्लस सी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं मान लीजिए ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा तो इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है पर अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा 90 प्लस 90 क्या होता है 180 होता है सो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सो इट कैन बी एंड नीड नॉट बी ठीक है बिकॉज इन द केस ऑफ इफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 तो सी भी 90 हो जाएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो 90 प्लस 90 180 हो गया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इफ अगर ए की वैल्यू 120 लेंगे तो 120 ये भी 120 ये भी तो ये आपका हो जाएगा 240 दैट इज नॉट इक्वल टू 180 सो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 सही है नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू 5 ए बी 5 हो गया और डी सी 4.5 नहीं ए बी 5 है तो डी सी भी 5 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं सो इट इज नॉट पॉसिबल सो नो नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू 80 एंड डी इज इक्वल टू 70 बी 80 है और डी 70 है नहीं अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं बी अगर 80 है तो डी आपका 70 ये नहीं हो सकता दोनों आपके सेम होने चाहिए तो इसका भी आंसर क्या होगा इसका भी आंसर होगा नो ओके नेक्स्ट b प्लस सी 180 अब देखते हैं b प्लस सी क्या होगा b और प्लस सी ये क्या होना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं तो b प्लस सी आपका 180 होगा बिल्कुल हो सकता है और किस केस में नहीं होगा ये आपको देखना है b प्लस सी 180 किस केस में नहीं होगा अगर पैरेललोग्राम है तो b प्लस सी आपका 180 होगा पर कुछ ऐसे केस आ गए मान लीजिए आपका केस आ गया अपोजिट साइड्स पैरेलल b प्लस सी 180 बिल्कुल ये होगा तो कैन बी और नीड नॉट भी कह सकते हैं पर कैन भी लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है b प्लस सी 180 एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ठीक नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू बी डी तो ए सी इज इक्वल टू बी डी डायगोनल से इक्वल होती भी और नहीं भी होती है ठीक है बिकॉज अगर पैरेललोग्राम का केस लेंगे सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट इफ इट इज द केस ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल सो इट कैन बी इट कैन नॉट बी so can be and cannot be can't be okay so and now question number 6 is a figure based question in that you have to find the value of the given angle so question number 6 will be your homework okay in next class I will discuss from question number 7 okay thank you and stay connected for recent updates of upcoming chapters.